So last week, this session is in continuation of the last week's reading session, which was from the book Secret, and it was about the chapters which was on relationships, money, and powerful processes. So, in continuation with that, we are going to continue reading The Secret. In short, let me introduce myself. Myself, Simran Gangwani. I am a happiness coach and trainer. Now, also officially a book coach with Wings Publication, and yes, associated with very energetic people in life now, and always surrounded by positive and happy people. The secret actually gave me this secret. So I'm going to share all my secrets because this is my favorite book, and I read it almost whenever I need a guidance. So I just open a page. So it really helps me a lot. So I'm going to share other secret as well, how this book has benefited me, how this book has changed my life. So anybody who has got this book or who is attending this session secret, please accept the fact that the secret in your life has started. You have entered the zone of secret, and now you have got the secret, and you're going to get the secret, getting activated in your life. So let's begin and welcome everyone. So today we are going to start about the first one is the secret to health. Now in this, we have I'm going to cover the important highlights, the snippets as from the chapter, and also I'm going to add some personal experiences which will really get you connected to the book and the concept which is given. So when we talk about health, we all know, for us, for every one of us, health is important, but we do not know the secret to health. So today you will come to know what is that secret which can give good health to everybody in this world. Okay, so let's get started. Now, to begin with, let me tell you that our body is actually, it's not a body. We see it's a body. We have body parts, but our body is actually the product of our thoughts. It's just a product of our thoughts. Whatever we think, it's a product of that. Now you must have heard about, very much famous about, the placebo effect. This is an example of law of attraction in action. Placebo effect. Now I'll explain to you the meaning here. Placebo effect is nothing but it's one of the healing technique, or the doctors have been using now. Even the placebo effect. I got to know about placebo effect from a webinar where I understood that there was a experiment going on between patients, and both the patients were having some sickness. So the doctors, what they did, one lot was kept in one room with the same sickness, and they were administered the medicine required to cure that sickness. And in another room, the same kind of sickness, a lot of people was placed, and they were not given the medicine, but they were given a sweet. Okay, which was told to them that if you have, whenever you have this sweet, you will get a relief. You will get your pain will get will vanish. Yeah. So what happened after 21 days, when the feedback was taken, it was found that the patients who were really taking the medicines, they did not recover so fast. Rather, the patients who were given the medicine, who were not given them a real medicine but fake treatment. This is actually, placebo is called as fake treatment. So when they were told that this is a medicine, they were actually given a sweet, and they took it as a medicine. And every time, so what did they feed to their mind? That okay, whenever I take this medicine, I'm going to get a relief. So that mind got programmed, and because of that programming, in 21 days they recovered 85% from that particular sickness. So here, this placebo effect is plays a very important role, and it's something which is really having no impact and no effect on the body. It's just like a sugar pill. Okay, and nowadays it's really going on well. So healing, this is something which is called as healing through the mind, because our mind requires healing. We hear a lot of things about our health from people around us. So healing through the mind actually works harmoniously with the medicine. That this means, it's just it's a technique where you're thinking perfect health. You're thinking perfect health. Okay,
Now, do you know? Let me ask you a question. Okay, when you're talking about perfect L, do you know? Give me the answer in the chat box. Do you know why you feel have discomfort in the body? Why do you feel some pain? Sometimes you get pain, and why there are some aches, or you have a backache, or you have a headache. Anybody has an idea why? Why do we get this kind of sickness to the body? We call it as, yeah, please write it in the chat box. Yes, very good, Alpana. It's stress is the major cause. She's given a very correct answer. Stress is a major cause. We know the answer. Yes, that stress is causing this trouble to us, but are we really applying to remove that stress from our body? Are we really doing something so that the stress goes away from the body? Because when the stress is not there, we are fine. But as soon as the stress enters, we find that the body is feeling some kind of discomfort. Comfort. Also, do you know why there are hundreds of diagnoses? So many people go for tests. Like the other day, I was passing by a diagnostic center, and there was a rush of people standing there. I was just looking at them. They have come for some diagnosis, right? They have come for doing some tests, and there are so many diseases being, hundreds of diseases. We see people, getting trapped into the disease. What is the cause? The main cause is negative thoughts, negative thinking. But we are not aware of all these things. So, this book, Secret by Rhonda Byrne, has revealed the secret of the negative thoughts, the impact of the negative thoughts on our health. Okay, so if you understand this today very clearly, you can cure any sickness. Any sickness can be cured. And this book has got lovely stories, success stories you can go through, and it's amazing. It gives you confidence. So yes, how do we remove this? The question is, if negative thinking is bringing a cause or discomfort to our body, then what are we supposed to do to remove this negative thinking? There is one technique which the author has given, very lovely technique. She says that love and gratitude will dissolve any disease. Any disease, it will get dissolved. Any negativity in our lives, just you practice love. How do you practice love? Love everybody around you. Love yourself. And when you practice love around yourself, when you are, surrounded by love, above you there is love, behind you there is love, below you, beside you, you are surrounded by love, and you also, you're grateful for the things in life. These two practices will dissolve the negativity completely from your life. No matter whatever form it has taken, whether it is on level 1, whether it is on level 2 or level 3, it will completely dissolve. And once the negativity dissolves, do you know what will happen? The stress which has caused the disease in the body, which has caused the discomfort, the pain in the body, that will automatically start disappearing. And this, you can speak to people who have really practiced this. I have been practicing this, and yet it has brought magical results on my health as well, which I'm going to share very soon with you. In short, so the author says very nicely that how do we do this? How do we practice gratitude? She says that you can say like this: thank you for my healing. Thank you. Instead of saying, what do we do if we all get a headache? What do we do? What is the first thing we do? We call up, or we get a call sometimes from people on the phone. We say, अरे today आज मुझे headache हो गया, आज मेरा ये हो गया. 10 बार हम बोलते हैं, 10 लोगों से अगर बात करते हैं उस 1 घंटे में. लेकिन may I have your cameras on so that we can connect, and we can have fun, because this is a book reading session. So the smile on your face, nice, Triveni, the smile on your face would give energy to everybody. We'll encourage each other. That's nice. Thank you so much, Rakhi. Thank you, Kamlesh ji. Thank you, Manika ji. Thank you, Varsha ji. That's nice. So this is something which is really, really magical. So thank you for my healing. Just this word, if you start, but you have to add something to it. You have to add the belief. You have to say, when you're saying these words, you have to believe that yes, you're getting healed. And with the belief, start visualizing your perfect health. That yeah, I am in my perfect health. Okay, and you will see the magic happening. There is one more technique she has mentioned. The author has very nicely explained. Laughter is the best medicine. She says laughter. We have heard this so many times in school or college. Also, I heard so many teachers telling me,
so many friends, and laughter is the best medicine. But the real meaning I understood at this stage of my life, that laughter is really the best medicine. And now I wake up at midnight just to laugh. I don't know why, because some joke joke might have happened in the day, and last night also 2 o'clock I just felt like dancing, and then my mom saw me dancing and just started laughing. I said, wow, this is something magical. At midnight, people, I used to wake up so many years to worry, to take tension, but now it's changed now, because it's all in the mind. Okay, so she says that, you can there is a story where a patient was having some sickness. I'm not going to name the sickness here. So a story has been mentioned, but by watching just comedy movies, the patient has recovered completely from that illness. So yes, my dear friends, it's really, really possible, and we can do that. So there is a very inspiring story of Kathy Goodman, and the message given is that the power of gratitude to heal. The three powers have been mentioned: the power of gratitude to heal, the power of faith to receive. So even if you're doing gratitude, your faith is important, equally important, and the power of laughter and joy. These are the three powerful techniques used by Kathy Goodman, and you can heal anything in your life. Okay, of course, there is, the medicine will do its own role, but when you do this will definitely. Now I will share you a very important story which will relate to your life as well. हमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, मैं भी जब जॉब करती थी स्कूल में, तो स्ट्रेस रहता था दिन भर, पता ही नहीं चलता था कि जीवन ही स्ट्रेस बन गया है। तो एसिडिटी की टैबलेट तो मंथली 10 15 दिन चलती है, डॉक्टर तो बोलते हैं ना 10 दिन लो। एंड हेडेक का तो बाम ऐसे लगा के सोती थी, और पिलो के नीचे बाम, रोल ऑन सब रहता था। बट मैंने जैसे ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, और मुझे ना इंसोमिया था बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा था ना, मुझे 4 4 महीने नींद नहीं आती थी अच्छे से। बट मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, मैंने जब से आई स्टार्टेड लविंग ऑल, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग हैप्पी, I'll tell you what happened. It was Diwali time. Actually, I'm getting goosebumps. मैं आपको बता रही हूँ, ये 2.5 साल पहले की कहानी है। मैंने कबर्ड क्लीन किया दिवाली के टाइम, एंड आई सॉ मेडिसिन ऑफ एसिडिटी, मेडिसिन ऑफ हेडेक, सैरिडॉन, एनासिन, ये सारे टैबलेट्स भर भर के मैं लाके रखती थी, क्योंकि मुझे लगते ही थे। और बाम सारे नए नए पड़े, मुझे फेंकने पड़े। एंड आई रियलाइज, ओ 6 मंथ से मैंने इनको कंज्यूम नहीं किया है, तब मुझे पता चला कि, एंड आई हैड सीवियर माइग्रेन, मुझे पता ही नहीं चला कि माइग्रेन गायब की तरह गया। एंड टचवुड, लास्ट 2.5 साल से no medication. I'm completely free from all the medication. So thanks to gratitude. So ये सच है, ये सीक्रेट हम सबके लाइफ में आ सकते हैं, और जब हम हेल्दी रहेंगे ना, दैट इज अवर वेल्थ। नहीं तो क्या होता है, देखा है ना आपने, कि लोगों के पास वेल्थ है, लेकिन कहाँ चला जाता है, उनके हेल्थ में जाता है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को, जहां भी आज खड़े हैं, wherever we are today, let's take let's promise to ourselves that, yeah, I'm going to change my life, I'm going to take care of it, and I'm going to use the secret of health which I'm learning today, and bring a change for the betterment of my life. Yes, so this is laughter. Now the medicine, now the meaning is very clear. Laughter is the best medicine, and after that the journey has started. So author has explained very well. So I can also add on to this, that there is a built-in program in our body which is called as self healing. आपको पता है self healing कर सकते हैं आप? एक्चुअली जो केमिकल्स है ना, जो डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, वो सारे केमिकल्स हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन में है। हमें ना उसको एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट होता है जब हम स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। स्ट्रेस होगा रिलीज कैसे? स्ट्रेस तो आता है, लेकिन हमें रिलीज करने आना चाहिए। देखिए ना, कॉमेडीज मूवी देखिए, खुश रहिए। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड से आपकी सारी हेल्थ कंसर्न्स भाग जाएंगी, मतलब आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो आएंगे जरूर, लेकिन आपको भगाने आ जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से और एक बात कही है कि थिंक थॉट्स ऑफ परफेक्शन। अब ये क्या है थॉट ऑफ परफेक्शन? बोलेंगे हमें तो टाइम ही नहीं है कि परफेक्शन के थॉट तो आते रहते नहीं। The illness, please remember, my friends, that the illness cannot exist in a body. Illness अगर आपके बॉडी में है, तो it cannot exist if you have harmonious thoughts. मैंने ये बुक ना जितनी बार पढ़ी, ये स्टेटमेंट पढ़ के एनकरेज हो जाती हूँ कि हाँ, my thoughts are harmonious, I am in harmony with my thoughts. तो जैसे जैसे आप अपने माइंड को बोलते हो ना, you will get the same result. हाँ, imperfect जो थॉट्स आते हैं ना, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, they are actually the cause of all sickness. They are the cause of diseases. They are the cause of poverty. They are the cause of unhappiness in our life.
So what are we waiting for? Why can't we start practicing this right from today, and change our life and bring the best health for ourselves? So Bob Proctor has explained in this, उनका अच्छा से एक quote डाला हुआ है, that if you have a disease and if you're focusing on it and you're talking to people about it, you're going to create more disease cell, आप उस disease को बढ़ा रहे हो, ठीक है? See yourself living in perfectly healthy body, let the doctor look after the disease. आपको मैं इससे related बताती हूँ. Now we have all have elders at home, right? हमारे सबके घर में बड़े हैं, तो आई ऑल्सो हैव एन एल्डर, माई मॉम. मैं बताती हूँ, वो ना फोन पे बड़े लोगों को क्या आदत होती है, हाँ फोन पे बात करेंगे तो ये बोलेंगे ना, हाँ आज कमर में दर्द है, आज पाँव में दर्द है, आज ये घुटने में दर्द है, आज ऐसा है वैसा है. तो मैंने मम्मी को बोला, जब मम्मा यहाँ आए, मैंने बोला मम्मा आप ना इससे मत बोला करो, आप ना उसको बढ़ा, तो उनको नहीं समझ में आया. बोला ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, ये बात मत करो, बाकी कुछ भी बात करो अपने रिश्तेदारों के साथ. तो मम्मा को थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन आपको पता है ये 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल से मम्मा ने बात करना बंद कर दिया है लोगों से इस बारे में कि ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ. जब एक बार वो कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा बात करते, तो वो ऐसे बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी चल रही है, मेरी तबीयत बहुत ठीक है, मुझे कुछ नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ. तो जब से उन्होंने ये बोलना शुरू किया, उनकी बीपी की टैबलेट बंद हो गई. जब भी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जाती हूँ, ये जबरदस्ती ले जाते हैं कि डॉक्टर का चेहरा है. डॉक्टर कहते हैं क्या चमत्कार हो गया, कैसे आप ठीक हो गए, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी, आप क्यों आए हो यहाँ? तो कहते आपका चेहरा देखने आए. तो ये हम सब कर सकते हैं, हम अपनी भी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, हम अपनों की भी हेल्थ ठीक कर सकते हैं. हमारे पास जब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड आएगा ना, और पावर हम उसका क्या कहते हैं, वो जो पावर ऑफ फेथ रहेगा ना हमारे अंदर, और पावर ऑफ लाफ्टर एंड जॉय, देखिए आप आसपास के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं. हम तो अपने घर में ऐसे कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए. इट्स वेरी 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 पावरफुल. Okay, so I hope, so let us remember so far that every unpleasant thought is a bad thing. मतलब आप ऐसा सोचो कि अगर आज आपको unpleasant thought आया ना, ऐसा सोचिए कि एक bad thing आपके अंदर चली गई. हाँ, हमारे घर में हम कचरा फेंकते हैं डस्टबिन में, राइट, और रोज हम कचरा बाहर, गार्बेज कलेक्टर आते दे देते हैं, लेकिन हमारे माइंड में, जो बॉडी में हमने डाला है, वो कौन निकालेगा? उसको फिर क्या हो जाता है, वो लग लग के then that gets converted into a disease. That's why we say forgiveness is the highest form of healing. फॉरगिव कर लीजिए ना. क्यों सोचते हैं, कितने लोग बोलते हैं, आप में से बताइए कितने लोग फॉरगिव नहीं कर सकते, कितने लोगों को प्रॉब्लम थी, मैं क्यों माफ करूं, मैंने क्या किया. जितनी बार ऐसा सोचेंगे, जितनी बार ऐसा बोलेंगे ना, तो तकलीफ हमें ही होती है कि सामने वाले को कुछ होता है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है. तो इससे अच्छा माफ कर दीजिए, ताकि आप रिलीव हो जाएं. व्हेन यू आर रिलीव्ड, ओके, यू विल से आई वाज लाइक दैट. मैं ऐसी थी, मुझे ना माफ करना बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं लगता था. मैं बहुत एकदम हाई इसमें रहती थी कि नहीं, मैं कैसे करूं, मेरी तो गलती नहीं थी. लेकिन ना एक बार मैंने ट्राई किया, मैंने जब मेरे मेंटर से देखा कि ये बोल रहे हैं, मतलब करने में क्या जरूरत, मैंने सचमुच में किया. आपको पता है, ये सारे जो कंसर्न थे हेल्थ के, इसलिए गायब हो गए. ये अच्छी नींद आती है आपको, आपकी टाइमिंग्स देखिए. लोगों को ना आप पूछिए कितने घंटे सोते हैं, आप लोग आंसर डालिए चैट बॉक्स में, मुझे बताइए कितने घंटे की नींद है आपकी, और कितने बजे से कितने बजे तक सोते हैं, बताइए. कितने लोग हाथ ऊपर करके बताइए कि 7 से 8 घंटे नींद सोते हैं, पीसफुल स्लीप सोते हैं. वो ही आपकी हेल्थ डिसाइड करेगी कि क्या आपकी हेल्थ कैसे चल रही है. अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से कर रहे हैं, तो देन यू आर इन द बेस्ट हेल्थ. यस, वेरी गुड. 6 6 आवर्स इज इनफ. 6 7 8 बेस्ट है, 6 7 8 में बेस्ट है, बट यू शुड स्लीप अर्ली. तो ज्यादा करके लोग सोने की कोशिश जल्दी क्यों नहीं करते, क्योंकि थॉट्स रहते हैं ना, रात को नींद नहीं आती है, तो देरी से सोते हैं, एंड देन द थॉट्स मल्टीप्लाई, एंड ज्यादा करके यू हैव द I don't say negative thoughts, I call it as ding dong. Okay, for me there are no negative words, I only say ding dong thoughts आते हैं, उसको भगाने आना चाहिए. Because yeah, sleep on time, exercise. Very good, Alpana. Sleep on time, exercise. So yeah, you know what, let me share a secret with all of you. There is a happiness button in all of us. आपको पता है, आपके अंदर एक happiness button है. आप जैसे ही उस happiness button को, आप अपने आप को बोलो कि अगर कोई negative thought आती है, आप ना बटन को दबा दीजिए, happiness button को, और अपने आप को बोलिए कि no matter what is happening around you, मैं खुश रहने वाली. जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आता है ना, ये प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, और बोलिए कि मैं ऐसे, बटन कहीं पे भी आप लगा लीजिए, बटन है हमारे अंदर, तो दबा लीजिए, मैं ऐसे करती हूँ, कोई भी थॉट आती है भगा देती हूँ उसको. या फिर मैं, अभी यहाँ पे लाफ्टर और जॉय बताया गया है, आई ऑल्सो प्ले द म्यूजिक, बट आई डोंट अलाउ, जस्ट लर्न टू शू अवे द
negative thoughts from yourself. Don't allow them to come, because that is the cause which is going to disturb the body, the health of your body, your mental health, your physical health, your emotional health. देखिए, हमें लगता है कि हमें सिर्फ बैक में दर्द है या सिर्फ सर में दर्द है, लेकिन हमें पता नहीं चलता इमोशनली हम बहुत ज्यादा हर्ट हुए रहते हैं। बचपन से कितनी बार डांट खाई है, तो वो हर्ट 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 कंटिन्यू क्यों रखना है, रिलीज करना है। हमें अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में, हमें कुछ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे, तो इमोशनल हेल्थ के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू बी अवेयर कि किस तरह से वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर फीलिंग्स। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, वो अवेयरनेस कब आएगी, जब हम आज के व्हेन वी स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, जब हम सोचेंगे कि हाँ। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। आई ऑलवेज से दैट इनक्योरेबल मीन्स क्योरेबल फ्रॉम विद इन। तो इन्होंने इतनी अच्छी सी स्टेटमेंट दी है कि जो इनक्योरेबल है वो एक्चुअली आप अंदर देखो। बाहर हमें दिखता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अंदर झांकोगे ना, अंदर आप बोलोगे ना कि आई एम क्योर्ड, आई एम हील्ड, देखिए वो आपको रिजल्ट आउटसाइड वैसे ही रिजल्ट, बिकॉज आउटसाइड रिजल्ट, आवर आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। सो इफ यू वांट टू चेंज योर आउटसाइड वर्ल्ड, आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, तो चेंज योर इनर वर्ल्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क फ्रॉम इनसाइड, एंड देन सी आपके साथ मैजिक होगा। तो आपने सीखा हैप्पीनेस बटन एक, है ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, आपको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। जस्ट चेंज योर थॉट्स, जस्ट ब्रिंग गुड थॉट्स, कल्टिवेट अ हैबिट जैसे नेगेटिव थॉट्स की हैबिट लग गई है ना, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट लगाइए, अच्छा सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, एंड देन यू सी दैट द मैजिक। सो यू कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन हील योर लाइफ। क्यों सोचते हैं कि इसने ये चेंज हो गए तो मैं खुश रहूंगी, ये बदल गए तो मैं खुश रहूंगा। क्यों बदलना है, किसी को क्यों बदलना है? change, you have the power within yourself. Okay, so we are now entering the era of energy medicine. Actually ये जो एनर्जी है ना हमारे आसपास है, तो हमारे पास बिलीव्स आए ना, हाँ 30 के 40 क्रॉस कर लिया तो ये मेडिसिन स्टार्ट कर लो। क्या कौन सी मेडिसिन है वो, कैल्शियम की मेडिसिन स्टार्ट कर लो, या ये मेडिसिन स्टार्ट कर लो, या ये चेकअप करा लो, है ना। थोड़ा सा किसी को चक्कर ये आ गया, चक्कर आ गया, तो बोलती नहीं नहीं आप ये मेडिसिन, ये जरा चेकअप करा लो। ये सब रॉन्ग बिलीफ से चल के आ रहे हैं, जो हम ना सराउंडेड रहते हैं ऐसे लोगों से। तो आपको ये बिलीफ को रिलीज करना है फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, तभी आप अपने हेल्थ पे, देन ओनली यू कैन फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, सो डू नॉट लिसन सोसाइटी के मैसेज को, मत सुनिए कि हाँ अभी आपकी एज हो गई है, अभी ये डिजीज आएंगे। डोंट लिसन, बिकॉज ये नेगेटिव मैसेज आपको हेल्प नहीं करने वाला है। एक काम कीजिए, आज सोचिए कि आज अगर आपको सर में दर्द नहीं हुआ ना, तो ग्रेटिट्यूड कीजिए। हाँ, कभी नहीं करते हम, ऐसा बोलते हैं जिस दिन सर दर्द होता है ना 10 लोगों को बता देते हैं, लेकिन जब सर दर्द नहीं होता है तो 10 लोगों को बताते हैं कि आज मुझे सर में दर्द नहीं हुआ, आज सर में दर्द नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। स्टार्ट फोकसिंग ऑन द positive aspects of your life. So that is what is about the, so the moral is gratitude, believe, visualize, and start doing self talk that I'm healing, thank you, gratitude add kijiye, thank you for healing me, thank you for healing me, and then you see the magic happening. So now we come to the the next chapter, the secret to the world. This is again a very amazing secret for all of us to understand. Okay, I have read this, so now once I know the secret, I know many of you must have read the secret book, तो आपको भी पता होगा, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डीप है। लेकिन जितनी बार ये बुक को पढ़ते हैं ना, उतनी बार नई नई चीजें सीखने को मिलती है। सो हियर यहाँ पे लिखा है कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द थिंग्स दैट दे वांट। हम बोलते हैं ना हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम मांगते रहते हैं, और एक चीज हमारे वर्ड्स में ऐड करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, है ना। हमें सबको पता है कि कोविड में क्या हुआ था, है ना। हम क्या ज्यादा बात कर रहे थे, न्यूज में क्या चल रहा था, we don't want covid, we don't want covid, and what did we attract, we attracted है ना, कोविड अट्रैक्ट किया। तो ये सीक्रेट है, एनी एनीथिंग वी फोकस ऑन वी डू क्रिएट। तो जहां पे आप फोकस करोगे ना, वहीं पे आप वही क्रिएट करोगे। तो इट्स रियली, अगर आप आज एंग्री मूड में हो तो आप एंग्री पे फोकस करो, यू विल सी दैट आपके आसपास सिचुएशन विल कम अराउंड विच विल मेक यू एंग्री, people will come to you which will make you angry, and you will have circumstances, you will have so many instances which will make you angry. Okay, and it will be suffering. So what you resist persists. She's written a very beautiful line, let me explain to you.
The reason that what you resist persists, because if you're resisting something, you know what you're saying, resisting मतलब आप क्या कर रहे हो? No, I don't want this thing because it makes me feel this way, the way I'm feeling right now. So you are putting out a really strong emotion of I really don't like this feeling. एंड देन क्या होता है, आपको वही फीलिंग, आप मैग्नेटिक फील्ड उसी को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में. इट स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना. तो व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट? दैट इज द रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस टू एनीथिंग, रेजिस्टेंस कहीं भी आए, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि अगर मैंने बोला कि मुझे ये अवार्ड मिल गया है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आज मुझे ना अवार्ड मिल गया है से अक्षय कुमार से, तो मेरे माइंड में रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं सिमरन, अभी तक तो तुम्हें नहीं मिला. उसको रेजिस्टेंस कहते हैं. वो क्यों आया है रेजिस्टेंस? इट्स लाइक आप है ना, यू आर ट्राइंग टू चेंज द आउटसाइड पिक्चर. आपको जो आउटसाइड पिक्चर है ना, आप उसको बदलने की कोशिश करो, जो आप देख रहे हो. मुझे तो नहीं दिख रहा है अक्षय कुमार ने मुझे अवार्ड दिया, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं उसी पिक्चर को देख रही हूँ. तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है. इट्स अ फ्यूटाइल प्रैक्टिस. यू हैव टू गो विद इन. आपको एक अंदर, अगर मुझे अक्षय कुमार से अवार्ड चाहिए, जो मैं सचमुच मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और मुझे अंदर जाके उसको अपने आप को बोलना है, आई हैव टू एमिट अ सिग्नल, आई हैव टू गिव अ न्यू थॉट टू माई सेल्फ, आई हैव टू गिव अ न्यू सिग्नल टू द यूनिवर्स विथ माई थॉट्स. प्लीज याद रखिए कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, यही आपका क्रिएशन है. आज रात को सोने के पहले आप अपने लाइफ की ना एक एक्सरसाइज करना. राइट डाउन 10 सेंटेंसेस आपके अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ, अलग अलग जितने भी आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ मेरे पास एक घर है, या मेरा ये जॉब है, जो भी आपके पास है, या इतना पैसा है, या ये रिलेशनशिप्स है आपके पास, जो है ये देखिए, दिस इज जस्ट बिकॉज यू हैव थॉट, यू हैव फेल्ट अबाउट इन द पास्ट, तभी वो आज आपको मिला है. तो जो नहीं मिला है उसके बारे में आपने सोचा नहीं, उसके बाद आपने फील नहीं किया. सो अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स create our future. So resistance नहीं लाना है. Okay, change the resistance. You have to change your thoughts, change your feelings, then your resistance will go away. Okay, so as you resist, you will add more energy, negative energy, more power. उस चीज को पावर दोगे जो अच्छी नहीं लगती है, और more and more वही पिक्चर आपके सामने आएगी. यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कोट लिखा है. मदर टेरेसा was brilliant. Mother Teresa was brilliant. Mother Teresa, what she said, I will never attend an anti-war rally. If you have a peace rally, invite me. वो anti-war rally नहीं attend करना चाहते थे. वो कहते हैं peace rally होगी तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगी. Because she knew, she understood the secret. उनको पता था ये secret क्या है. Look what she manifested in the world, and we all know about Mother Teresa, right? So let's understand the secret. Yes, let's understand the secret. Yes, Sakhi, very nice. Everything in the world began with just one thought. आपको क्या लगता है ये जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और जो भी इन्वेंशन हमको दिख रहे हैं, या मोबाइल, या फिर ये वाईफाई, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम हमारे पास डेटा कनेक्शन है, ये कहीं कोई टाइम में ये नहीं थे. लेकिन आज वो अगर हमारे पास है, ये कहीं ना कहीं किसी के पास थॉट में आए हैं, तब वो आज रियल हो गए. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिगैन विथ वन थॉट. द बिगर थिंग्स गेट बिगर बिकॉज मोर पीपल गिव देयर थॉट. जितना आप उसको बड़ा करोगे, वो चीज बड़ी होती जाएगी. तो आफ्टर इट हैज अपीयर, एंड देन आपके वो जो थॉट्स और इमोशंस है, दे विल कीप दैट वेरी इवेंट. उसी चीज को आप फोकस करोगे, वो बड़ा होके इट विल बिकम रियल. तो आपको अपने माइंड को अपने फोकस से नहीं हटाना है. मैं आपको एक यहाँ पे ना एक ये बताती हूँ फोकस नहीं हटाने के लिए. आप ना अपना हाथ आगे रखिए. फॉर एग्जाम्पल आपका कैमरा है, वो आपका गोल है, ठीक है, ये आपका गोल है. आप देखिए कैमरा को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए. लुक एट इट. या दैट इज माई गोल, दैट इज माई गोल. नाउ कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू कैन यू सी द गोल? No, I can't see the goal, right? Now you remove it. हाँ. So what we are doing, हम, हमारा फोकस है, हमारे पास गोल है, बट हम बार बार ना फोकस हटा रहे हैं. तो फोकस नहीं हटाना है. जहां पे आपका फोकस होगा वही आपको मिलेगा. अभी देखो नहीं दिख रहा है. सो वेयर इज माई गोल? सो इफ वी टुक अवर माइंड्स ऑफ इट एंड वी फोकस्ड, इससे अच्छा अगर नेगेटिव थॉट से फोकस हटा के इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन लव, then you can bring the magic in your life. Okay, it will evaporate. आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, it will just evaporate, गायब हो जाएंगे. आपको दिखेंगे भी नहीं आसपास भी कि वो कहीं है.
इट इज ओके, इन्होंने बहुत, जैक कैनफील्ड ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, इट्स ओके टू नोटिस व्हाट यू डोंट वांट। हाँ, हमें पता है, मुझे पता है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसे गुस्सा करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मनी के बारे में गलत बोलते हैं। हाँ, मुझे पता है, इट्स ओके। हाँ, टू नोटिस, आप नोटिस कर रहे हो, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्ट्रास्ट टू से, आपको एक कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, दिस इज व्हाट आई डू वांट। But the fact is, the more you talk about what you don't want or talk about how bad it is, read about that all the time and then say how terrible it is, well, you're going to create more of that. हाँ, तो क्यों फोकस करना है? अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में है जो आपको बार बार गुस्सा दिला रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन से रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, तो आप बार बार वही चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप फोकस आपका उधर जा रहा है ना, बिकॉज अब उसी के बारे में बात कर रहे हो, यू फोकसिंग ऑन दैट, उसी के बारे में, यू आर फीलिंग बैड, आपकी इमोशन भी वहीं जा रही है, एंड देन व्हाट हैपेंस, यू फील मोर टेरिबल एंड देन यू विल क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ दैट। ओके, सो यू कैन नॉट हेल्प द वर्ल्ड बाय फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स। हम बोल रहे हैं हमें सबकी हेल्प करनी है, तो कैसे हेल्प करेंगे? नेगेटिव थिंग्स से फोकस हटाना होगा। जब हम नेगेटिव थिंग्स से फोकस हटाएंगे, अपनी हेल्प करेंगे, तब तो वर्ल्ड की हेल्प कर पाएंगे। पहले अपने आप को तो चेंज कीजिए, है ना। हम सब कर सकते हैं, इन्होंने, ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो कितने लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर, टीवी और ये सारी चीजें में टाइम यूज करते हैं? कितने लोग देखते हैं टीवी का न्यूज और न्यूज़पेपर में दुनिया में क्या चल रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू स्पेंड टाइम? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, नाइस। अल्पना, ओके, हु एल्स? ओके, नो। श्रीवेणी, नो। दीना, नो। ओके, yeah, okay, so even I, okay, now let me tell you this, the magic. Yes, Alpana, thank you. Okay, you spend reading headlines. Okay, that's great. Now let me share with you, I have not watched TV from last 18 years. अब ये क्यों नहीं देखा? एक्चुअली टीवी है, हाँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तभी वो जी टीवी नया आया था, तो मेरे मम्मा बोले मैं इसको टीवी लगा के दूंगी, ये पढ़ेगी नहीं, टीवी लगा के दूंगी पर, तो मैं बहुत मेरे फ्रेंड्स से सुनती, जी टीवी पे प्रोग्राम्स है, जी टीवी प्रोग्राम्स है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया मुझे, और धीरे धीरे क्या हो गया, हैबिट ही नहीं लगी टीवी देखने की। तो आई वॉज द ऑड वन आउट। मेरे जब फ्रेंड्स ना मूवी के बारे में बात करते थे या फिर कुछ सीरियल के बारे में, मैं नहीं नहीं बात कर पाती थी, क्योंकि मैं देखती नहीं थी। तो आई एम थैंकफुल टू माई मॉम फॉर दिस कि उन्होंने टीवी नहीं दिया मुझे। आज टीवी है, मेरे को लगता है ये 4 महीने से मैंने टीवी नहीं चलाई है। आई हैव नॉट स्विच्ड ऑन, मतलब अभी चलाती भी तो सिर्फ एक्सरसाइज देखनी होती है ना, बड़े वीडियो, तब चलाती हूँ। मुझे तो एक्चुअली रिमोट भी, आई हैव टू आस्क समबडी हेल्प मी टू ओपन स्विच ऑन द रिमोट एंड देन आई कैन डू इट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये तो व्हाट हैपेंस, अभी जब मैंने ये सब सीखा, व्हेन आई लर्नड अबाउट द सीक्रेट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द अवर नेगेटिव थॉट्स इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी आर सराउंडेड विद। ये जो नेगेटिव न्यूज है, इट्स इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग अवर माइंड, समवेयर इट इज इम्पैक्टिंग अवर माइंड। Once you stop doing this, you will realize कि अरे हाँ, so when during the COVID time, there was a time when I was very low. I had completely gone down in my life. That time I met a mentor and she told me 30 days तक कोई भी टीवी नहीं देखेगा और जो मैं सिखा रही हूँ वही, उस पर ध्यान देंगे। एंड सचमुच में मैंने, वैसे भी टीवी नहीं देखते, लेकिन मैंने वो न्यूज, वो जो कोविड में चल रहा था, वो भी सब बंद कर लिया। यूट्यूब पे जब देखते हैं ना, तो हाँ न्यूज आ रहा है, इधर हुआ है, वो भी बंद कर लिया। आपको पता है 30 days mind became so happy, so positive, I could focus on my thoughts. So the same thing is being told here. The media is the effect and we are the cause. हम cause कर रहे हैं। Okay, so it is just the law of attraction in action. तो जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, जो आप बोलोगे, आप वही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। Okay, so learn to become still and to take your attention away from what you don't want. ये नहीं चाहिए ना आपको, तो हटाइए अपना यहाँ से दिमाग, हटा लीजिए। एंड ऑल द इमोशनल चार्ज, उसके आसपास ना, जब आप जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहे हो ना, उसमें भी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सीरियल देख लिया जिसमें ना कोई रो रहा है या कोई डांट रहा है ना, आपका कोई इमोशन ऐसा होगा पास्ट का जो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो एक्टिवेट हो गया। एंड जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग those kind of people, those kind of situations in your life. Okay, so take charge of your emotions right now and place your attention and then you see what you wish to expect. आपको पता है
आपके पास, हम सबके पास इतना पावर है कि हम जो विश करते हैं ना, हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एवरी मोमेंट जो भी विश कर सकते हैं ना, हम एवरी एक्सपीरियंस को अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। वी रिपीट, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो आज सुबह से देखिए आपका एनर्जी कहाँ, आपका अटेंशन कहाँ गया, कहाँ गया। जब मैं, मेरा बेटा 16 इयर्स का हुआ, मुझे बताया गया था कि इसको संभालना, इसके ऊपर नजर रखना, ये कॉलेज में है तो इसके दोस्त कैसे है, तो मेरा अटेंशन उस पर ही रहता था और मेरा एनर्जी उस पर ही जाता था। अभी आई हैव चेंज्ड। ओके, नाउ माय माय एनर्जी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी उसका फोकस हटा लिया है। सो नाउ माय फोकस, ओ I'm focusing, yeah, now, he's an obedient boy, he's loving me, he's very grateful. So focus ही उस चीज से हटा लिया. So then I saw, oh, now मेरा attention अच्छी चीज पे गया है, तो मेरा energy भी उस तरफ जा रहा है. And I got magical results also in my relationship. Now it is like that कि मुझे morning message आती है ना, अगर my son is traveling to his college, so he will say, थैंक यू मम्मा. ये कैसे हुआ? बच्चों को तो ये सिखाते नहीं ना, हम स्कूल में कंपलसरी बोलते हैं, क्या हम एक बार बोल देते हैं हाँ पेरेंट्स को कि थैंक यू बोलना, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं, है ना, याद दिलाना पड़ता है पेरेंट्स को, स्ट्रगल करना पड़ता है कि भाई मैंने किया है तुम्हारे लिए कुछ, लेकिन तो वी हैव टू, वी आर रोल मॉडल. तो जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया ना, मैंने देखा चेंजेस अपने फैमिली मेंबर्स से भी देखा. तो आपके अंदर भी ये चेंजेस आप ला सकते हैं. आप जहां पर भी हो, वेर एवर यू आर, no matter wherever you are, you can change your life right from now, right from today. Okay, so think truly, and then you will see that your the life will change. Now tell me why we are talking about thinking. Tell me why thinking good is important. Can somebody tell me why thinking good is important? Why? Because we are thinking, we are just thinking. Okay, we are not talking about the experience outside. Why? How is it why the author is telling us to think good? Can one of you answer, please? Anybody? Any answer, हिंदी में भी बोल सकते हैं. Yeah, good. That's nice. Oh wow, lovely chats. Yeah, thoughts become our actions. Very good. Yes, true. Okay. So thinking is important. क्यों? क्यों thinking good is important? Thinking is important, but thinking good is important क्यों है, बताइए. बता दूं? Anybody? Anybody? Just one line. Okay, let me share. Okay, I got an answer. Yeah, very good, Gunjan. So that it can get our reality. Wow, that's an amazing. Come on, let us give a good hand. That's wonderful. Okay, yeah, we all know this actually, right? But we have to put it into practice. So she has written very. She has explained. Author Rhonda Byrne has explained this very well. Sorry. As you focus on the good things, जैसे thinking good. So आप क्या कर रहे हो? You are focused on the good things. So you know what? You will feel good. You will feel good, and when you feel good, thinking be good, feeling be good, and what will happen, you will bring more good things into your life. Okay, at the same time you are bringing more good things into your own life. आप अपनी life तो ला ही रहे हो. When you feel good, जब आप feel good करते हो ना, आप अपनी life को uplift कर रहे हो. तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम इस world में तो रह रहे हैं, तो हमने वर्ल्ड को भी अपलिफ्ट कर लिया, राइट? सो इन दिस वे you uplift the world as well. Very good. Okay, so you are the master of your life. The author is explaining very well. We all are the masters, है ना? हम क्यों सोचते हैं कि इसने जो बोला ये मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए. Okay, guidance is different thing, guidance is required, but we need to ask our, we have a soul inside us, we can create what we want. ये जो सक्सेसफुल हम लोग देखते हैं ना, जो बहुत अच्छी सक्सेस कर रहे हैं, जहां हमें जाना है, ये क्यों सक्सेसफुल हुए? बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड दिस सीक्रेट, दे ब्रॉट द सीक्रेट प्रैक्टिस इनटू देयर लाइफ. यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ. एंड आप जो बोलते हो ना, जो मांगते हो, यूनिवर्स सिर्फ बोलता है ओके मेरे आका, ओके मेरे आका, ऐसे बोलते हैं. वो आपके हर कमांड को पूरा कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो आपके हर कमांड को पूरा कर रहा है. हमें पता नहीं चलता है. तो डोंट गेट मेस्मराइज बाय द पिक्चर्स. आप बोलते हो ना, अरे बार ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बुरी नहीं हूँ. मैं ऐसे सोचती थी जब मैं जॉब करती थी, मैं सोचती थी अरे मैं तो बुरी नहीं हूँ, फिर मेरे साथ लोग ऐसे गॉसिप करने वाले लोग क्यों बैठे हैं, मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों गए. मैं एक्सेप्टेंस ही नहीं था मेरे अंदर कि मेरे अंदर भी थॉट्स है.
ठीक है, जब से मैंने एक्सेप्ट किया कि या इट्स मी एंड व्हाई ओके, इवन इफ यू फील वी आर गुड, बट देन वी आर सराउंडेड बाय द पीपल, तो कहीं ना कहीं माइंड सुन रहा है आपके गॉसिप को, आपके नेगेटिव थॉट्स को. एंड व्हेन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, ओके, you make them light, okay, and आपको उसको let go करना होता है. When you let go, then only you will see that you will have place for the new thoughts. Okay, what you want you can get, what just by thinking and feeling and being grateful for it. just ये 3 चीज, सोचो, बोलो और थैंक यू बोलो. सोचो, बोलो, सोचो, बोलो, एंड देन यू सी यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ. व्हाई? कुछ भी मिल सकता है. क्यों हम बोलते हैं नहीं मुझे मेरे ऐसे ऐसे शब्द सुना है मैंने, और मैं भी पहले बोलती थी, अब तो नहीं बोलते, कि ना शायद तकदीर में ही नहीं लिखा है, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स. ठीक है, तकदीर में ही नहीं है. अरे तकदीर नहीं है, यूनिवर्स इज अबंडेंट. किसने कहा? किसने ये बता दिया कि तकदीर सबकी सेम है, सबको अच्छा बना के भेजा है, सबकी तकदीर बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने इसको समझा नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट या यूनिवर्स इज एबंडेंट, हम सबके लिए है. आप एक बात बताइए कि जब एक पेरेंट है, उनके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा रो रहा है, दोनों को भूख लगी है, ठीक है, एक बच्चा रो रहा है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो, खाना दो. ठीक है, मम्मा खाना किसको देगी मुझे बताइए. फर्स्ट चाइल्ड इज क्राइंग क्राइंग, मुझे खाना दो. हाँ, और वो कंप्लेंट भी कर रहा है कि लास्ट टाइम आपने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया. लेकिन जो द अदर चाइल्ड, ओके, द सेकंड चाइल्ड, ही इज सेलिंग मुझे खाना दो, और मैंने लास्ट टाइम ये खाया था, और आपने ना मुझे ये टेस्टी बना के नहीं नहीं नहीं. सेकंड चाइल्ड इज कंप्लेनिंग, मुझे आपने आज मुझे ना यही देना, मैं यही खाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जो पहला वाला रो रहा है वो बार बार बोल रहा है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए. सेकंड वाला एक बार बोल के बैठ गया, तो मम्मी खाना किसको देगी? मम्मी खाना किसको देंगे? पहले वाले को देंगे या सेकंड वाले जिसने एक बार बोल के? हाँ, द बेबी हु इज आस्किंग. तो आर यू आस्किंग द यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज हैविंग अबंडेंस. आपने यूनिवर्स को कमांड दिया क्या? आपको चाहिए क्या? द यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, हम सबके लिए है देने के लिए. इट्स अवेलेबल इन अबंडेंस. द एसेंस ऑफ दिस लॉ, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, द एसेंस इज दैट यू मस्ट फर्स्ट, आपको ना पहले बोलते हैं कि पैसे चाहिए ना, बैंक, आपको बैंक अकाउंट में अगर पैसे दिखने हैं तो फर्स्ट ब्रिंग इट इन योर माइंड. जब यहाँ पैसे आएंगे ना तब बैंक अकाउंट में पैसे दिखेंगे. ठीक है, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो पहले यहाँ अच्छी हेल्थ ले आइए, तब अच्छी हेल्थ आपको अपने लाइफ में दिखाई देगी, है ना. अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, पहले यहाँ अच्छे रिलेशनशिप्स लाइए. ब्रिंग इट इन योर माइंड फर्स्ट, एंड देन आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स ला सकते हैं, जो भी आपको चाहिए. ठीक है, सो ये कह रहे हैं एसेंस ऑफ लॉ, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट फर्स्ट यू मस्ट थिंक अबंडेंस, सोचना है, सी अबंडेंस, आपको उसको देखना है, आपको फील करना है कि हाँ अबंडेंस है, और बिलीव करना है. विदाउट बिलीव तो होगा ही नहीं, है ना. और बिलीव क्यों हमारा हिलता है? क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें बिलीव नहीं करने देता है कि हाँ ये मुझे चीज मिल सकती है, अगर मैंने ये मांगी है मुझे आसानी से मिल सकती है. तो बिलीव अपना बढ़ाइए. जब आप बिलीव करोगे ये चीज जल्दी से दौड़ के आ जाएगी. लेकिन ये बिलीव को अगर आपको स्ट्रांग करना है ना, आपको अपने माइंड के अंदर जो लिमिटेशंस है, रिमूव ऑल द लिमिटेशंस फ्रॉम योर माइंड. ये जो छोटे छोटे आवाज आते हैं ना अंदर से कि कैसे होगा, क्यों, कब होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, सब कुछ होगा, ये लिमिटिंग बिलीव्स निकाल दीजिए. लेट नो थॉट ऑफ लिमिटेशन एंटर योर माइंड. डोंट हैव any thought of limitation. She explains well, because nothing is limited. ये वर्ल्ड में सब कुछ है, यूनिवर्सिटी सबके लिए बना के रखा है, भरपूर मात्रा में है. नथिंग इज लिमिटेड. कोई भी चीज, इट इज ओनली, जो लिमिटेशन है ना सिर्फ हमारे माइंड में है. ठीक है, तो अगर हम माइंड के लिमिटेशंस को निकालेंगे, व्हेन वी ओपन अवर माइंड्स टू दिस अनलिमिटेड, हम सबके इतनी क्रिएटिव पावर है, तो हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, एंड वी विल एक्सपीरियंस अ होल न्यू वर्ल्ड हियर. ओके ना, बोलते हैं कि देखते हैं कि अच्छा इसको भगवान ने दिया, इस पर्सन को नहीं दिया, एक फैमिली दूसरे फैमिली में कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, देयर इज ओनली अ लैक ऑफ फेथ. आपका बिलीफ नहीं है. इफ यू कैन सी इट, if you can believe it, if you can see it, if you can act from it, it will show up to you. तो आपको ये बात तो सच है, पहले बिलीव करना है, you have to see कि आपको वो मिल रहा है, and you have to act. of course एक्शन तो है जरूरी. अगर मैं यहाँ बैठे बैठे बोलूंगी कि मुझे ना सिंगापुर घूमने जाना है और सिर्फ बैठी रहूंगी, तो क्या हो जाएगा? वो एक्शन करना पड़ेगा ना. अगर मैं एक्शन लूंगी, बुक करूंगी टिकट, पहले तो प्लान करूंगी हाउ, व्हेन टू गो, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर टू गो,
I have to book the ticket, then I have to see where I will stay, so I have to take action. So this is how the things will come up to you, है ना. एक्चुअली एक्शन लेने के पहले एक स्टेप होता है, जब हम आस्क करते हैं ना यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमारे पास आंसर देते हैं. Get into the habit. How many of you are having the habit of asking a question to the universe? अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं तो यूनिवर्स से पूछिए. आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, मैं डेली है ना, डेली रात को सोने के पहले एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ देती हूँ कि मुझे ना ये काम करना है, कैसे करना है. तो पता है आंसर कैसे आता है? या तो किसी के कॉल में वो आंसर आ जाता है, या तो कोई यूट्यूब पे चैनल पे मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, या तो कोई किताब में पढ़ती हूँ तो उसका आंसर मिल जाता है. सो यूनिवर्स इज हैविंग अनलिमिटेड सप्लाई टू गिव यू. आपको क्वेश्चन पूछना है. तो कितने लोगों को आदत है ऐसे क्वेश्चन बात करने की? जब मैं यूनिवर्स कह रही हूँ, इट मीन्स द एनर्जी, द पावर इन हुम यू बिलीव, जिसमें आपको बिलीव है. आप अगर गणपति पापा को मानते हो, उनसे मांगिए. अगर आप कृष्णा को मानते हो, दैट इज यूनिवर्स फॉर यू. मैंने यूनिवर्स में सारे भगवान को लाए, सारे लोगों को लाए, इसलिए मेरा फेथ बैठ गया है. इवन माई फादर, आई बिलीव माई फादर इज देयर, सो यूनिवर्स इज माई फादर. और मुझे पता है पापा तो देंगे, मैं मांगूंगी ना, वो तो जरूर देंगे, है ना. सो आपको अपना फेथ डेवलप करना है. देयर इज इनफ फॉर एवरीवन. सो अगर इफ यू हैव एनी लैक, अगर आपको बिलीफ नहीं है ना, मतलब आपके माइंड में लैक की फीलिंग है, इफ यू हैव एनी लैक, ओके, इफ यू आर अ प्रे टू पॉवर्टी, अगर कोई डिजीज है या पॉवर्टी है, it is just because you do not believe or you do not understand that the power is yours. आपके पास पावर है, जस्ट ये बिलीफ नहीं है लोगों को कि मेरे पास ऑलरेडी पावर है. इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा है या भगवान आपको नहीं दे रहा है ना. कितनी बार हुआ है मुझे बताइए, टेम्पल हम जाते हैं, मैं जब भी टेम्पल पहले जाती थी तो सिर्फ मांगने जाती थी कि भगवान मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे ये देना. कितनी बार हम गए थैंक यू बोलने, मुझे बताइए. मांगने के लिए बहुत बार गए, कितनी बार गए थैंक यू बोलने? दिया तो बहुत कुछ है. क्या गए हम टेम्पल में थैंक यू बोलने के लिए? नहीं गए, क्योंकि हमारे अंदर लैक की फीलिंग रहती है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. सो इफ यू हैव दैट फीलिंग ऑफ लैक, your belief is not strong and you will not get it. But that doesn't mean यूनिवर्स के पास, आपके पास देने के लिए नहीं है. उनके पास है देने के लिए. ओके, इट ऑफर्स एवरीथिंग टू एवरीवन, नो पार्शियलिटी. हम सब एक है. जैसे एक पेरेंट के पास अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं ना. ऐसा होता है क्या माँ बाप एक बच्चे को ज्यादा प्यार करे, दूसरे को ना प्यार करे? अभी कभी देखा है ऐसा? कहीं नहीं देखा. तो हम सबके जो पेरेंट्स है ना, यूनिवर्स, हमारा जो एनर्जी जिस भगवान में हम मानते हैं वो पावरफुल है. ही लव्स अस ऑल. स्टार्ट सेइंग टुडे. मैं रोज बोलती हूँ ये स्टेटमेंट, कम से कम 10 बार बोलती हूँ. आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. ऐसा बोलिए, आपका माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी. एंड देन या द बेबी, या शी इज ओके. सो या अंडरस्टूड. तो इस तरह से आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. यूनिवर्स is ready to give everything to all. Okay, so जिसको नहीं मिला, उसकी लिमिटेशन की वजह से नहीं मिला, उसकी बिलीफ पावर कम है, तो वो चेंज करेंगे तो हो जाएगा. सो एवरीथिंग दैट यू वांट, जॉय चाहिए, लव चाहिए, अबंडेंस चाहिए, इट्स देयर, रेडी है, वो अवेलेबल है. अगर आज आपको शॉपिंग करनी है, कोई मॉल में जाओगे, तो ऐसा कुछ है क्या कि आपको नहीं मिलेगा वहां पे? मुझे बताइए. आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे है ना एक डाइनिंग टेबल खरीदनी है, चले जाते हो मॉल में, बिंदास मिल जाता है. हाँ, तो विश्वास है कि मिल जाएगा. तो जब हमने अपने भगवान से मांगा, क्यों हम डगमगाते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, हम लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं या फिर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. कभी आपने देखा कि एरोप्लेन कौन चला रहा है? कभी देखा ट्रेन की गाड़ी ड्राइवर कौन है? नहीं देखा. लेकिन मजे से बैठते, मजे से एंजॉय करते हैं जर्नी को कि हाँ ये तो पहुंचा देगा, अच्छा मैं तो पहुंच जाऊंगी. फ्लाइट में भी जहां जा रहे हैं पहुंचा. फिर ये जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है यूनिवर्स, उस पर विश्वास नहीं? उस पर विश्वास कीजिए, बिलीव, उन पे विश्वास कीजिए, वो सब रेडी है. तो इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी है, लेकिन आपको हंग्री होना पड़ेगा. अगर आपको पता होना चाहिए आपको क्यों चाहिए. यू हैव टू बी हंग्री फॉर इट. मुझे चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, जिसको ज्यादा भूख लगी थी, जिस बच्चे को ज्यादा भूख लगी थी ना, माँ उसको पहले चुप कराएगी ना जाके. ये जो नहीं रो रहा है वो तो चुप बैठा है. जो ज्यादा रो रहा है उसको भूख लगी तो माँ उसको दे देगी, है ना. तो इन्होंने लिखा है बहुत अच्छे से कि आपको तभी मिलेगा, पहले तो आप हंग्री होने चाहिए, है ना. आप एक बच्चे को बोलो चलो खाना खा लो, वो बोल रहा है मुझे भूख नहीं, जबरदस्ती मुंह में भरोगे तो खाएगा क्या वो? नहीं खाएगा. भूख तो होनी चाहिए ना उसको. तो एक होनी चाहिए. एंड यू शुड बी रेडी.
उस चीज के लिए आप रेडी होने चाहिए। आपने मांगा तो है, बट आप रेडी हो क्या उसको लेने के लिए अपने लाइफ में? तो वो रेडी होने के लिए पता है क्या करते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने देखा है, लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ना हमें यहाँ शादी करनी है या फिर हमें ये जॉब चाहिए। ठीक है, आपने एफर्मेशन लिखा, जो भी आप टेक्निक सीख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, लेकिन पता है क्या करते हैं हम उसमें ना? हम लोग वो बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ना कॉन्ट्रास्ट आता है। फिर जैसे अगर कोई शादी किसी को करनी है और उसका रिश्ता चल रहा है, और वहां से फैमिली से, इन लॉ से कुछ उसको ऐसा मैसेज आया जो उसको अच्छा नहीं लगा लड़की को, तो ये कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कॉन्ट्रास्ट है, यूनिवर्स ने भेजा है कि देखो यहाँ शादी करनी है, ये कॉन्ट्रास्ट है, तुम रेडी हो क्या? और हम लोग उस कॉन्ट्रास्ट को समझते नहीं है, हम उसमें रोना धोना, कंप्लेन करना शुरू कर देते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस कॉन्ट्रास्ट को एक्सेप्ट कीजिए। मेरे पास कॉन्ट्रास्ट आता है, बहुत बार आता है। बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं ना तो कॉन्ट्रास्ट आता है, तो मैं बोलती हूँ अच्छा, तो आप मेरी टेस्ट ले रहे हो ना, ठीक है, टेस्ट ले लीजिए, हम तो पास हो जाएंगे, मुझे पता है मुझे आगे जाना है। तो कॉन्ट्रास्ट इज एन एग्जाम, लर्न टू पास इन द एग्जाम, दैट कॉन्ट्रास्ट इज गुड। मैं डांस करती हूँ, ऐसे कॉन्ट्रास्ट आते हैं रिलेशनशिप। देखो कभी हमारे घर में या बाहर रिलेटिव्स हैं आसपास या फ्रेंड्स हैं, है ना, कभी किसी की बात बुरी लग जाती है ना, तो या फिर हम बोलते हैं या वो, तो ऐसा होता है, तो हमारी फीलिंग डाउन होती है, लेकिन हमें अपनी फीलिंग को मेंटेन करना है। तो जब हम उस कॉन्ट्रास्ट आया, तो अगर मैं डाउन हो गई तो क्या होगा? मैं अपने गोल से हट गई, फोकस हट गया, और फिर मुझे फोकस लाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अच्छा, आज इन्होंने मुझे कुछ बोला, ठीक है कोई बात नहीं, यूनिवर्स कॉन्ट्रास्ट है, निकल जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, कल वापस से अच्छा दिन आएगा। इस तरह से उसको भगाना, यूनिवर्स को पता है ये तो भगा देती है, इसको तो कितना भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट भेजो। तो इस तरह का मैसेज हमें देना है, ठीक है। सो लर्न टू प्रेज एंड ब्लेस, बिकॉज आपके आसपास आप हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके अंदर पावर है, एवरीथिंग इज वेरी पावरफुल। Learn to praise and bless everything around you, because when you are praising or blessing, okay, you are on the highest frequency, आप है ना एकदम highest frequency of love में चल रहे हो। okay, ये एक मैसेज जरूर लेके जाना। और जब आप प्रेस, मैं क्या करती हूँ पता है? मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे बाहर जाना होता है वॉक पे, या फिर मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ, अगर मुझे कोई ऑटो वाला दिख गया ना, सिर्फ बैठा है ऑटो में, मैं उसको जाते जाते गॉड ब्लेस यू, बस ट्रैवल कर ली, बस में जितने लोग फटाफट से दिखाई दिए ना, बस तो गॉड ब्लेस यू ऑल। या फिर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जितने लोगों को हो सकता है ना दिन में, गॉड ब्लेस यू कर लेती हूँ। और प्रेज, जैसे प्रेज अभी अपने घर से ही शुरू कीजिए ना। आज अपने पेरेंट्स को जाके गले लगाइए और बोलिए उनको कि आप ये बहुत अच्छा काम करते हो, आप खाना अच्छा बनाते हो। देखिए आपको बोलेंगे क्या बात है, आज आपका फोकस हम पे कैसे आ गया। थोड़ा सा प्रेज कर लीजिए आसपास। आप जब ये प्रेज और लव की हैबिट ले आओगे ना, आपके पास भर भर के प्रेज आएगा, भर भर के लव आएगा लाइफ में। द रूल इज, पहले देना पड़ता है फिर मिलेगा। जो भी चाहिए ना जिंदगी में, पहले देना सीखिए, लर्न टू गिव एंड देन यू विल रिसीव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। सो हियर वी एंड विद द नेक्स्ट चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, द सीक्रेट टू यू, in the next week, okay, because that's a very important chapter, तो आज अब वो start नहीं कर रहे हैं। तो any doubt anybody has, and otherwise we have completed this chapter here, the secret to the world. uh-huh. It was amazing, Simran, with all your life examples and the way, the energy, the part, and ding dong. बहुत अच्छा है। Yeah. Thank you Cute. so much, thank you। अभी this is really working, and ना ये थोड़ा कॉमेडी लगता है, मैं किसी को बताती हूँ ना तो कॉमेडी लगता है डिंग डोंग, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे ही सब हैं जो 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 ज्वाइन होते हैं ना क्लास, मुझे बोलते हैं मैम, मेरी मेरी जो हाउस हेल्प है ना, वो मुझे फोन करके बोलती नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, उसको पता है मुझे सुनना नहीं है वो बात, ठीक है, और मैं सुनती नहीं, क्योंकि मैं अपनी तबीयत क्यों खराब करूँ ना। किसी ने मुझे बोला मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे मेरे माइंड ने सुना, तो वो कहीं ना कहीं आई विल अट्रैक्ट दैट, तो वो मुझे सिर्फ मिस्ड कॉल देती है, सिर्फ मिस्ड कॉल से मैं समझ जाती हूँ। या तो मैंने उसको बोल दिया, नहीं भी दोगी ना मिस कॉल, मैं समझ जाऊंगी आप 11 बजे तक नहीं आया, बार मैं समझ जाऊंगी आपका कुछ डिंग डोंग है आज। मुझे नहीं बताना। No, So Simran, I love that word ding dong. In fact, I have borrowed it, or you can say I have stolen it from you. And even in my team, whenever we have a problem solving session, and if we feel कि कोई issue आने वाला है,
they always say, there's a ding dong situation, let's have a call. Yeah, very good. So you are also not listening, they are also not listening. So we have blessed others, we are protecting others also. हम अपने आप को तो protect कर ही रहे हैं, Absolutely, right? absolutely. It Thank you, saves us thank from that you. negativity, na? Yeah. And then when I say that, no, I say, now I tell people, अरे वो डिंग डोंग को भी डर लगता है, डिंग डोंग को भी डिंग डोंग हो रहा है मेरे पास आने के लिए. क्योंकि उसको पता है कि इधर जा रहा हूँ तो ये तो भगा देती है मुझे, तो जाऊं या नहीं जाऊं ऐसे. है ना? सो वी ऑल कैन बी हैप्पी. बस बी हैप्पी, और हैप्पीनेस 24 आवर्स रहना बहुत इजी है ना? आने दीजिए डिंग डोंग को, वो कॉन्ट्रास्ट है, टेस्ट है, और बोलिए मैं ये टेस्ट में पार करके, क्योंकि मेरा गोल से ये दिख रहा है ना गोल, उसमें बीच में किसी को आने मत दीजिए, जो भी है हटा लीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, एंड यू विल रीच देयर. या thank you so much, Alpana. Thank you so much, Shivani. That was lovely feedback. Thank you so much, everyone. Okay, thank you, Pushpa. Yes, I hope everybody enjoyed. Yeah. I thought, is Kamlesh saying something? I thought he moved forward to say something. Yeah, I just wanted to say thanks to Simran ma'am. You covered this topic very well Okay. by thank giving the real life examples, Thank and you. the way you came back in your life from the negativity towards the positivity. It is amazing, Yeah. and I'm wishing you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you Thank you so so much. much. Thank you, and I bless everybody कि जैसे मैं कर सकती हूँ ना, हम सब चेंज कर सकते हैं. बहुत इजी है, हम सब कर सकते हैं, और हम अपनों को भी हेल्प कर सकते हैं, है ना? Yes. So thank you so much. That was lovely. Thank you so much. Yeah. Thank you. Take care. Thank you. Bye bye. 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 Bye Bye. everyone. Bye. Bye. Take care. Yeah. Take care. Thank you. Bye.